Hi, this is Kanika. Welcome to the next video. In this video, we will discuss direct mapping hardware implementation. So, let's take an example of an instruction. This is the instruction move R note M 1000. So, what does this instruction specifies? Move means copy. So this instruction specifies that copy the data at the memory location 1000 to the register R node. Getting? Copy the data from the memory location 1000 to the register R node. So when the CPU wants to execute this instruction, then CPU needs to access the word at this location. So CPU will generate the address 1000. As we know, before accessing the memory, CPU has to examine the cache memory. If the word is present in the cache memory, then it is hit, and if the word is not present in the cache memory, then it is miss. So this is the hardware for direct mapping, and this hardware is called the cache controller. So it is the duty of the cache controller to find the word in the cache memory, and if the word is not present, then automatically bring the word from the main memory to cache memory. Okay, so this is the word which was generated by the CPU. Cache controller interprets this word into the non format. And what is the non format? Non format is tag, line number and block offset. So cache controller already knows ki how many tag bits, how many line number bits and how many block offset bits. So let's suppose here for the tag we have the 1 bit, for the line number we have the 2 bits and for the block offset we have 1 bit. So अभी आप मुझे बता सकते हो कि इसका क्या मतलब है 1 bit, 2 bit, 1 bit, आपको इनसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेंगी. सो 1 bit रिप्रेजेंट दैट 2 to the power 1 ब्लॉक्स कैन बी प्रेजेंट इन अ 1 लाइन. मतलब प्रेजेंट नहीं, मतलब कि कैन बी मैप टू द 1 लाइन. एक लाइन पे बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं. तो कितने ब्लॉक्स हो सकते हैं? 2 to the power 1 ब्लॉक्स. एंड दिस 2 bits स्पेसिफाइज दैट 2 to the power 2. It means 4 lines are present in the cache memory. So cache memory में कितनी lines है? 4 lines है. And this 1 bit 2 to the power 1 is equal to 2 words are present in the blocks. It means if the cache memory is divided into the 4 lines, then each line has 2 words. 0 and 1, 0 and 1, 0 and 1, like this. And there are how many lines? 4 lines. 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. So कैश कंट्रोलर क्या करता है? इस लाइन नंबर से यहाँ पर लाइन को सेलेक्ट कर लेगा. सो यहाँ पे क्या है? 0 0. सो द कैश कंट्रोलर विल सेलेक्ट दिस लाइन whose address is 0 0 and will check the tag bit with the tag bit specified in the address. So we know the tag is associated with each line in the cache memory. So जब आप इस लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, then this tag bit will be matched with this tag. If both matches, then it is hit, and if it doesn't matches, then it is miss. So कैसे यहाँ पे करते हैं मैं आपको भी अच्छे से यहाँ पे बताती हूँ. Wait for a second. इसको हम इरेज कर देते हैं. Okay. So now see, this is your cache memory. It has 4 lines. मैंने अभी आपको बताया है अगर 2 bits हैं for the line number, so there will be 4 lines. And these 4 lines will be these 2 lines, जो ये 2 numbers हैं, ये 2 bits हैं, इन 2 bits से we select the lines. So what hardware we will use here to select the particular line? So for this we can use the MUX. Do you know the functionality of the MUX? MUX is a digital component which we study in the DLD. So what is the functionality of the MUX? This is your MUX. MUX takes inputs
it has some select lines and it gives you one output. So how it performs? If you give 0 0 as a select line, then mux select the input of the first line and appear it as the output. Okay, and if you select the line 0 1, then mux select the line number second and gives the output on the output line. सेम एज मक्स के अंदर हम ये जो लाइन नंबर है, दिस लाइन नंबर को एज ए सेलेक्ट लाइन देते हैं, और बिकॉज 2 सेलेक्ट लाइन्स हैं तो कितनी इनपुट्स होंगे, 4 इनपुट्स होंगे. हम टैग एसोशिएट कर देते हैं सबसे पहले. सो कितने इनपुट्स होंगे मक्स के, 4, 1 2 3 एंड 4. दिस इज़ योर टैग बिट, दिस इज़ योर लाइन एड्रेस और लाइन number, and this is output. So if it is 0 0, then mux select the first line and the tag associated with this line will be appeared on the output line. And if it is 0 1, then mux will select the line 0 1 and will give the output tag which is associated with this line. Okay, so let's suppose the tag is here 1, the tag is 1, then it will appear 1 here. Then we need to compare both the bits whether these bits matches or not. If the bit matches, then it is hit, and if bits doesn't match, then it is miss. So here it is 1 bit, so 1 comes here, and this is your comparator. This is your 1 bit comparator which compare both the bits, because both bits matches, so it gives you 1 and it is hit. Okay, and let's suppose it is one second. So let's suppose it is not 1 but it is 0. तब सपोज हमारा जो यहाँ पे टैग बिट थी वो 1 नहीं है, इट इज़ 0. सो हेयर इट कम्स 1. मक्स का आउटपुट क्या होगा, 0, एंड 1 एंड 0 आर कंपेयर्ड एंड इट गिव्स यू 0 एंड विच इज़ मिस. सो इन दिस केस फ्रॉम द मेन मेमोरी वी हैव टू ब्रिंग द वर्ड इनटू द कैश मेमोरी. सो कैसे हम इसको लेकर आएंगे, वी नो दिस इज़ द एड्रेस of the word which is required by the CPU. If we see as a cache format, then it will be tag, line number and block offset. But when we need to bring the word from the main memory to cache memory, then we need to know the format for the memory. And what is the format of the memory? Block address and block offset. समझ रहे हैं आप? देखिए कैसे आपका जो मेन मेमोरी होती है वो डिवाइड होती है ब्लॉक्स में, एंड ईच ब्लॉक हैज़ सम वर्ड्स. सो व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ द वर्ड्स, इट इज़ डिफाइंड बाय द ब्लॉक ऑफसेट, एंड हाउ मेनी ब्लॉक्स आर प्रेजेंट देयर, इट इज़ डिफाइंड बाय द ब्लॉक एड्रेस. सो ब्लॉक एड्रेस को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये क्या है 100, इट मीन्स 4. इसके लिए यू नो कि अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर किसी ब्लॉक को कैश मेमोरी में मैप करना है, सो फॉर दैट वी हैव द मैपिंग फंक्शन. सो व्हाट इज़ द मैपिंग फंक्शन, ब्लॉक नंबर मोड नंबर ऑफ कैश लाइंस. सो वो आपको बता देगा कि कौन सी कैश लाइन में आप ये ब्लॉक को मैप करने वाले हो. सो दिस इज़ फॉर मोड, how many lines are there in the cache memory, and those are 4. So what will be the value of this, it will be 0. आपको ये कैलकुलेट करना आता ही होगा. 4 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना रिमाइंडर कितना आता है, 0. तो दिस इज़ द मोड. ओके, सो रिमाइंडर इज कॉल्ड द मोड हेयर. सो दिस ब्लॉक विल बी मैप टू द लाइन नंबर 0 0 और इसकी टैग बिट्स क्या होंगी, 1. So 1 will be stored here and the block will completely be mapped here. Understood कैसे आपकी फंक्शनिंग यहाँ पे होती है, डायरेक्ट मैपिंग किस तरीके से होती है. ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा. मैं इसको इरेज कर देती हूँ, वेट फॉर अ मिनट.
ओके, अभी जो हमने डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया था एक बिट के लिए, जहाँ पे टैग बिट कितनी थी, ओनली 1 थी. हाउ मैनी टैग बिट्स वर इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, ओनली 1 बिट. अगर मैं आपको बात करूँ, जब मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पर जो टैग है वो 2 बिट्स का है, मतलब यहाँ पे 2 बिट्स गिवन है. दिस इज़ योर लाइन नंबर जो कि 2 बिट्स का है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. और ये भी 1 बिट का है, लेट्स सपोज. सो इट इज़ ब्लॉक ऑफसेट विच इज़ ऑफ 1 बिट. तो अब कैसे काम करेगा आपका हार्डवेयर? द सेम, वी हैव द मक्स and here we have the cache memory and it has 4 lines because the line number is of 2 bits, so here will be the 4 lines and each line has the tag and tag bits यहाँ पर अब की बार कितनी है, 2 bits है. So there will be the 2 tag bits, one is this and another one is this. सो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि इसका जो इसके पास 4 इनपुट लाइंस हैं और इन इनपुट लाइंस को हमने टैग बिट से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, एंड इट विल गिव यू द आउटपुट. एंड आउटपुट में क्या होगा, जो टैग का कंटेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा. टैग का कंटेंट यदि 1 बिट है, यहाँ पर हमने एक ही बिट से कनेक्ट किया है तो एक ही बिट आएगी, समझ रहे हैं आप. लेकिन यहाँ पर टैग के पास कितनी बिट्स हैं, 2 बिट्स हैं. सो ये जो मक्स है वो यूज़ किया गया था ओनली फॉर 1 बिट के लिए, ठीक है. अब मुझे सेकंड बिट भी चाहिए, तो सेकंड बिट आपको कैसे मिलेगी, यू यूज़ अनदर मक्स विच इज़ ऑफ द सेम साइज विच हैज़ द सेलेक्ट लाइन सेम एज द लाइन नंबर 2 बिट्स एंड इट्स 4 inputs will be connected to the second line of second bit of the tag like this. सेकेंड बिट से कनेक्ट कर दीजिए. तो ये वाला जो मक्स होगा ये क्या देगा आपको, सेकेंड बिट देगा. देखिए ये जो पहले वाला मक्स था इसका जो आउटपुट होगा वो आपको देगा फर्स्ट बिट ऑफ द टैग, एंड जो आपने सेकेंड मक्स यूज़ किया है वो आपको क्या देगा, सेकेंड बिट ऑफ टैग. अंडरस्टूड. सो इन दोनों बिट्स को हम यहाँ पे ले आते हैं इस तरीके से एंड विल कंपेयर विद दीज बिट्स स्पेसिफाइड इन द एड्रेस. सो यहाँ पर भी हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कंपैरेटर यूज़ करना पड़ेगा. अब की बार जो कंपैरेटर यूज़ होगा वो कितनी बिट्स का होगा, 2 बिट्स कंपैरेटर. इस बार जो कंपैरेटर होगा वो होगा 2 बिट्स का कंपैरेटर. और सेम यदि 1 है तो हिट और यदि 0 आता है आउटपुट तो वो होगा मिस. देखिए कंपैरेटर क्या होता है, एक एक्सनोर, यू नो एक्सनोर से ही मिलकर कंपैरेटर्स बनाए जाते हैं. देखिए 0 0 1 1 0 1 1. सो एक्सनोर में क्या होता है, यदि ये दोनों डिफरेंट हैं तो 0 0 और यदि दोनों इनपुट सेम है तो 1 1. सो कंपैरेटर एक्सनोर से ही मिलकर बना होता है. यदि आपका 1 बिट कंपैरेटर है तो वो एक एक्सनोर है, और यदि 2 बिट कंपैरेटर है तो हमने उसके अंदर 2 एक्सनोर्स लगाए हैं. अभी आपको समझ आ रहा है कैसे हम इसकी फंक्शनैलिटी करेंगे यहाँ पर. आई थिंक इट इज़ अंडरस्टूड. सो यहाँ पे देखिए मैंने यही बोला है, कैश कंट्रोलर क्या करेगा, लाइन नंबर को रीड करेगा. मक्स की हेल्प से वी विल सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर लाइन, दिस इज़ योर फर्स्ट. Then we will select that particular line या corresponding line we will select, and the tag associated with this line will be appeared on the output of the mux. So this is your first mux, so first bit will be appeared of the tag. If it is second mux, so second bit will be appeared on the output of the mux, and then all the bits of the tag will be matched with this tag specified in the given address, and here we use the comparator. Understood? Okay. So let's suppose, okay, अभी हमने जो सब पढ़ा है उससे हमने क्या पढ़ा है. अगर मैं आपसे पूछूं दिस इज़ योर मक्स एंड दिस इज़ कंपैरेटर, ठीक है. सो हाउ मैनी मक्स you are using here and how many comparators you are using here, and what is the size of the mux and what is the size of the comparator. So कितने मक्स हम यूज़ करेंगे,
इट डिपेंड्स ऑन द टैग बिट्स। यदि आपकी टैग बिट्स k है तो k मक्स यूज़ करेंगे, यदि आपकी टैग बिट्स 2 हैं तो 2 मक्स यूज़ करेंगे, और 3 है तो 3 मक्स यूज़ करेंगे। या आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो आपका मक्स है, एक मक्स केवल एक ही टैग बिट देता है। अगर मुझे k बिट्स चाहिए तो मक्स कितने मक्स चाहिए होंगे, k मक्स चाहिए होंगे। एंड व्हाट इज़ द साइज ऑफ द मक्स, जितने भी मक्स हैं उनका साइज क्या होगा। देखिए साइज डिपेंड करता है किस पे, इट डिपेंड्स ऑन द लाइन नंबर। सपोज लाइन नंबर l बिट्स का है तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ द मक्स, इट विल बी 2 to the power l into 1. okay, how many comparators we will use here, only one comparator we will use here. And what is the size of the comparator, it depends, size of the comparator depends on the टैग बिट्स कि कितनी बिट्स का कितनी टैग बिट्स हैं। सपोज k टैग बिट्स हैं, हमारा कंपेरेटर कितने बिट्स का होगा, k बिट्स कंपेरेटर। अंडरस्टूड। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस पर। एक चीज़ और है यहाँ पर, ये जितने भी मक्स हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ऑल मक्स वर्क ये पैरेलली, ठीक है। जितने भी आपके यहाँ पे मक्स हैं वो पैरेलल काम करेंगे। इसका मतलब हर एक मक्स एक ही टाइम लेगा। सपोज़ एक मक्स को परफॉर्म करने में 2 नैनो सेकेंड लगते हैं, तो हर एक सारे मक्स जो हैं वो केवल 2 नैनो सेकेंड में ही काम को कंप्लीट कर देंगे। आपको ये समझ आ गया होगा। प्लीज़ write your notes, whatever I am teaching here, please write down it. Okay, thank you.